The idea is that if you start with the easy material first, and what is the easiest material that you can find? These are the NCRTs. Other reason why we study NCRTs is कि भाई direct questions आते हैं इधर से. But if you are preparing for 2027, meaning अगले साल का prelims आप देना चाहते हो and you want to give a serious attempt, you don't have to read all of them. Effectively, we'll be covering each and everything that you require in order to understand कि भाई NCRTs के तहत आपका अप्रोच क्या होना चाहिए. How do you basically start with NCRTs? Hello everyone, namaskar. So whenever you're starting UPSC preparation, how do you read NCRTs, or rather कौन सी NCRTs पढ़नी है? NCRT से related बहुत सारे सवाल हमारे रहते हैं. तो in today's video, I'll try and cover each and every one of those questions, starting from why do we need to read NCRTs, which NCRTs, old versus new, how do you read them? How do you read them के लिए particularly we'll take the example of India Physical Environment, which is class 11th की NCRT for geography. Now, since it's my subject, geography, I teach at upscprep.com, so therefore I'll give you the example of कि भाई क्या इधर करना है, कैसे करना है. At the same time, how much time is required to read, let's say, all of them, right? तो all of them कहाँ से आएगा कि भाई कौन कौन सी पढ़नी है और उन सब को पढ़ने में कितना टाइम लगने वाला है. Finally, do you make notes or not? Effectively, we'll be covering each and everything that you require in order to understand कि भाई NCRTs के तहत आपका अप्रोच क्या होना चाहिए. How do you basically start with NCRTs? So let's get started. The most basic idea is that you need to learn in phases. What does that mean? Now, if you're just starting UPSC preparation and आपने बहुत टाइम से जो ये बेसिक सब्जेक्ट्स है, which are history, polity को जब स्कूल में थे तब civics भी बोलते थे, right? Geography, economy, तो ये सारे जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, जो हमारे बेसिक स्टैटिक सब्जेक्ट्स भी जिनको बोला जाता है, इनका अगर आपका या तो बैकग्राउंड नहीं है, मीनिंग यू हैव नॉट डन देम इन क्लास 11th एंड 12th, यू हैव डन इंजीनियरिंग और एनी अदर स्ट्रीम फॉर दैट मैटर, नॉट दीज, सो देन आई रियली नीड टू स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स. एंड उसमें मैं ऐसा नहीं करता हूँ कि भाई मैं डे वन पे उठा के कि भाई मतलब पॉलिटी मुझे समझ नहीं आता है, मैंने पॉलिटी पहले कभी नहीं पढ़ा, आई एम गोना गो एंड स्टार्ट रीडिंग लक्ष्मीकांत टू बिगिन विद. नाउ, it's not like you cannot do that. The idea is that if you start with the easy material first, and what is the easiest material that you can find? These are the NCRTs. तो NCRTs हम इसलिए पढ़ते हैं because it gives us a base to build on. It builds the foundation. And वो foundation जब हमारी strong होती है, so then it becomes easier for us to appreciate the subject also. क्योंकि अगर मैं सीधा यहाँ से start करता हूँ ना, this difficulty of the subject, so then it becomes just very hard for me to appreciate that subject. I'm constantly thinking about कि भाई मैं पढ़ रहा हूँ क्योंकि मुझे इससे पेपर निकालना है, तो I'm taking it like a job, and when I'm taking it like a job, I don't enjoy learning. If I start easy यहाँ से, so then maybe you can learn to appreciate the subject a lot more. तो phases में हम ऐसे चलते हैं कि भाई पहले थोड़ा easy, then medium difficulty, and then finally hard difficulty. Hard difficulty में आपकी सारी reference books and all आ जाएंगे. Now, this is obviously one of the reasons why you study NCRTs. The other reason why we study NCRTs is कि भाई direct questions आते हैं इधर से. Now, this is an NCRT, Indian Constitution at Work, class 11th, जहाँ से मतलब I've highlighted this particular section कि it does not mean freedom to do anything that one desires or like. Question in prelims कि भाई which of the following would you most accept as the appropriate definition of liberty, right? कि भाई it is not the opportunity to do whatever one likes, right? तो बेसिक आइडिया क्या है? एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट भी नहीं है कि भाई कुछ भी नहीं कर सकते हो, राइट? बट ये कहीं ना कहीं यहाँ पे सही आंसर आता है. दिस इज समथिंग दैट यू विल फाइंड इन दीज एनसीईआरटीज, एंड ये ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ इस चैप्टर में था. देयर इज अनदर चैप्टर जहां से आप देखोगे कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन, सेम एनसीईआरटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क. अब आप बोलोगे सिर्फ इस एनसीईआरटी से आते तो सिर्फ मैं ये कर लेता हूँ, नहीं. क्लास 11th की फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी एनसीईआरटी, पी वेव्स, एस वेव्स, ये डायरेक्ट आपका इस एनसीईआरटी में गिवन है. दोनों स्टेटमेंट आपकी यहां से हो जाएंगी. नॉट जस्ट दिस चैप्टर, अनदर चैप्टर अगर मैं लेता हूं तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का ये क्वेश्चन आता है. तीनों स्टेटमेंट आपकी इसी चैप्टर में यहीं की यहीं गिवन है. तो this is one of the core reasons why you want to do NCRTs, that not just do they help you build a base, they help you build the fundamentals, they
help you enjoy the subject. Because if you're enjoying the subject, it will be easy for you to study. ये चीज मतलब बहुत लोग appreciate नहीं करते हैं, and I don't know why. If you are enjoying reading the subject, it will be very easy for you. You will out compete everybody else क्योंकि आपको वो चीज करने में मजा आ रहा है. बट आप किसी चीज को काम बना लेते हो ना, जब मतलब कि नहीं नहीं ये तो करना है, ये तो 8 घंटे करना है, तो वो इट्स द सेम थिंग एज कि घर वाले जो काम देते रहते हैं बीच बीच में, करने हैं, बट लाइक आई एम नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन डूइंग देम. बट इफ आई एम इंटरेस्टेड इन लर्निंग, if I'm interested in studying, that becomes a superpower. And that is what we have to develop. And NCRTs obviously help us do that very, very easily. Right? तो डायरेक्ट PYQs आते हैं, बेस बनता है, सारी चीज होती हैं. Therefore, absolutely you should read NCRTs. Now, this brings us to the question of कि भाई कौन सी NCRTs हमें करनी है. You might have often heard कि भाई 6th to 12th की NCRTs आप सारी कर लो. Now, you can, अगर आपके पास टाइम है, if you are preparing for 2028 or 29 or any further attempt after that कि भाई मैं कॉलेज फर्स्ट ईयर में हूँ, I want to start preparing, so on and so forth, I would highly recommend that you read all of them. But if you are preparing for 2027, meaning अगले साल का प्रीलिम्स आप देना चाहते हो and you want to give a serious attempt, you don't have to read all of them. Why? क्योंकि अब होता क्या है यहाँ पे, 6th to 8th की जो NCRTs हैं, देन 9th 10th की जो NCRTs हैं, एंड देन 11th 12th की जो NCRTs हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ रेपिटेशन. यहाँ पे जो चीजें कवर हुई हैं वो यहाँ पे थोड़ा और डेप्थ में कवर होंगी, देन यहाँ पे जो हुई हैं वो फिर से यहाँ पे और डेप्थ में कवर होंगी. 11th एंड 12th की NCRTs है, दीज आर अ मस्ट रीड. तो ये तो हमें पढ़नी ही पढ़नी है, बिकॉज जो अभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड वर्क, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी जो मैंने NCRTs दिखाई, दीज आर क्लास 11th एंड 12th की NCRTs. तो इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहे हैं, तो ये तो वी आर डेफिनेटली रीडिंग. बट नाउ लाइक ये जो प्रीवियस क्लासेस की NCRTs हैं, द कोर आइडिया इज कि अगर मुझे 11th 12th की नहीं समझ आ रही, देन आई स्टार्ट विद 9th एंड 10th. 9th 10th भी मुझे लग रहा है कि यार ज्योग्राफी पढ़े हुए ना बहुत टाइम हो गया है, इट्स जस्ट नॉट मेकिंग सेंस टू मी, गो फ्रॉम 6 to 8. इतना लोड नहीं लेना है इसमें, पर्टिकुलरली इफ यू गिविंग लाइक आप फर्स्ट सेकेंड ईयर में हो कॉलेज के, आपको बाद में अटेम्प्ट देना है, आई वुड हाईली रिकमेंड स्टार्ट फ्रॉम क्लास 6. अदरवाइज इफ यू जस्ट गिविंग कि भाई 27 में आई वांट टू गिव अ सीरियस अटेम्प्ट, 11th एंड 12th की NCRTs तो आर अ मस्ट रीड. सो ये अपना बेसिक हो गया. बट व्हेन इट कम्स टू द एग्जैक्ट लिस्ट ऑफ कि भाई कौन कौन सी NCRTs मुझे पढ़नी है, तो दैट यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ. अब ये शीट क्या है, दिस इज द प्लान दैट वी शेयर. तो ये 1 ईयर का एक प्लान है 2027 के लिए. इफ यू आर प्रिपेयरिंग, तो दिस इज लाइक अ डे वाइज प्लान. तो ये प्लान का क्या डिस्कशन है, मतलब क्या बेसिस है, इसको अपन ने अलग वीडियो में डिस्कस किया है, तो आई एम नॉट गोइंग टू बी रिपीटिंग दैट राइट नाउ. व्हाट आई वांट टू फोकस ऑन इज जस्ट दिस लिस्ट ऑफ NCRTs. एंड इस लिस्ट ऑफ NCRTs में ना कुछ अब ओल्ड वर्सेस न्यू की बातचीत चल रही है, तो ओल्ड वर्सेस न्यू वाली चीज पे भी एक बार बात कर लेते हैं. बट दिस इज लाइक मैंने एक डिटेल्ड लिस्ट बना दी है आपके लिए क्लास 11th एंड 12th के लिए. Right, there are not a lot of books that I have said over here for class 6 to 10th, and I'll tell you the reason for that in just a moment. अब होता क्या है कि भाई ओल्ड वर्सेस न्यू की बात कर लेते हैं. अब ओल्ड NCRT जो थी अपनी, नाउ दीज आर योर ओल्ड NCRTs फॉर हिस्ट्री, class 6th, class 7th, class 8th, right? And then these are your old NCRTs for civics for 6th, 7th, and 8th. ओल्ड NCRTs for geography 6th, 7th and 8th. अब ये जो सारी NCRTs थी, ग्रेट गुड, बट अब क्या हो गया है, इन सबको ना कंबाइन करके सिंगल सेट ऐसे बना दिया गया है कि दिस इज क्लास 6th की NCRT, जिसमें वो सारे सब्जेक्ट्स हैं. हिस्ट्री भी यहीं पे मिलेगा आपको, ज्योग्राफी भी यहीं पे मिलेगा, एंड लाइक एवरीथिंग दैट यू वांट यू विल फाइंड इन दिस वन सिंगल NCRT. नाउ क्लास 7th की 2 पार्ट्स में ये NCRT आई है, 7th पार्ट 1 एंड 7th पार्ट 2. सिमिलरली क्लास 8th की भी 2 पार्ट्स में आनी थी, पार्ट 1 आ चुका है, पार्ट 2 जो है उस पर कॉन्ट्रोवर्सी हो गई थी. तो यू माइट हैव हर्ड ऑफ दैट कॉन्ट्रोवर्सी वेयर सुप्रीम कोर्ट टुक कि भाई मतलब ऐसे कैसे बोल दिया कि भाई जुडिशरी में करप्शन है एंड ऑल दैट, व्हिच वाज द लाइक स्टूपिडेस्ट थिंग फॉर देम टू डू. बट एनी हाउ, जो सेकंड पार्ट है दैट हैज नॉट येट बीन रिलीज्ड, विल कम आउट सून. तो इन दीज केसेस अप टू क्लास 10th, I want you to focus only and solely on the new NCRTs. अब वो rationalize होके content आता है तो उस पे rationalized content पे focus करो. NCRT ही change होके नहीं आ जाती है तो you focus on the new NCRTs only. For the simple reason कि भाई यहाँ पे जो basics आप कर रहे हो,
इसमें अगर आपको नए एग्जाम्पल्स मिलते हैं, नया डेटा मिलता है, तो दैट विल बी वेरी वेरी गुड। क्योंकि पर्टिकुलरली लेट्स से इफ आई टॉक अबाउट ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी में ये जो एनसीईआरटीज हैं, अब इसमें बेसिक्स ठीक है सही होंगे, बट जो डेटा होगा वो 15 साल पुराना डेटा है। सो देयरफॉर इट्स गुड कि भाई अच्छा अब मेरे को पता तो चले कि भाई इस स्टेट में सबसे बड़ा क्रॉप कौन सा उगाया जाता है, सबसे ज्यादा क्या आउटपुट आता है, बिकॉज दीज थिंग्स चेंज ओवर टाइम। सिमिलरली कि भाई now the past is not going to change a lot, but civics में which is polity, which is the structure of our political life, तो in that case there have been a lot of constitutional amendments। तो वो नए amendments क्या हैं, किस तरीके से change हो रही हैं चीजें। इफ आई गेट द न्यू बुक्स मेक्स लाइफ इजियर फॉर मी। हिस्ट्री की पुरानी पढ़ते भी हो कोई लोड नहीं है, बट अगेन सिंस यू आर ऑलरेडी रीडिंग देम तो हिस्ट्री भी इधर कवर हो जाएगा, मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। नाउ क्लास 9th एंड 10th की जो एनसीईआरटीज हैं विच आर द न्यू एनसीईआरटीज आर येट टू कम, बट इफ एंड व्हेन दे कम यू कैन ऑल्सो रीड देम। द ओनली डिफरेंस ओवर हियर बीइंग कि भाई अब मुझे जो एनसीईआरटीज अपनी करनी है फॉर ओल्ड एनसीईआरटीज, वो सिर्फ और सिर्फ ये 3-4 ओल्ड एनसीईआरटीज करनी है जो यहां पे हाईलाइट कर दी गई हैं इन बोल्ड। मॉडर्न इंडिया ओल्ड एनसीईआरटी, एंशिएंट इंडिया ओल्ड एनसीईआरटी एंड मिडिवल इंडिया ओल्ड एनसीईआरटी। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड हिस्ट्री की ये ओल्ड एनसीईआरटी करना चाहते हो तो कर सकते हो, यू कैन स्किप दिस ऑल्सो फॉर द मोस्ट पार्ट। नाउ अब ये कहां से मिलेंगी? यूजली यू कैन गेट देम ऑन Amazon, पुराना पीडीएफ इनका मिल जाता है, नहीं तो इनका एक नया रीप्रिंट वर्जन आता है वो भी आप ले सकते हो, इट डजंट मेक अ डिफरेंस। तो जैसे Amazon पे अगर मैं देखता हूँ तो देन लाइक ये 3 एनसीईआरटीज का बंडल मिल जाता है। अब अगेन प्लीज कीप इन माइंड दैट दीज विल बी ओल्ड, सो सेकंड हैंड टाइप चीज रहेगी, ये फटी हुई हो सकती है, पेज निकले हुए हो सकते हैं, तो देन ऑल ऑफ दोज इश्यूज एग्जिस्ट। नाउ इनका नया रीप्रिंटेड वर्जन जो है, दिस इज व्हाट मेडिवल इंडिया लुक्स लाइक एंड दिस इज व्हाट इंडियाज एंशिएंट पास्ट, एंशिएंट इंडिया लुक्स लाइक। तो ये कोई भी इनमें से एनसीईआरटी आप देख सकते हो। नाउ what is the idea कि भाई only for history class 11th and 12th we are going for old NCERTs, rest of the time we are pretty much sorted and we are only going to do the new NCERTs। now which means कि भाई history की class 11th and 12th की जो अब NCERTs हैं उनका क्या किया जाए। तो 11th and 12th की जो अब NCERTs हैं आपकी, उसमें हमें बस इतनी चीज समझनी है कि भाई themes in Indian history part 1, 2 and 3, now these are more for art and culture। क्योंकि आप ये जब एनसीईआरटीज पढ़ोगे ना तो इसमें हिस्ट्री कम है, बट मोर लाइक कि भाई अच्छा भाई आर्ट कैसा चल रहा था वहां पे, पेंटिंग कैसी कर रहे थे, या भाई किस तरीके से लोग एक्सप्रेस कर रहे थे, तो दो sorts ऑफ थिंग्स आर कवर्ड ओवर हियर अ लॉट मोर। एंड आर्ट के लिए विच इज आर्ट एंड कल्चर स्पेसिफिकली, देयर इज अ फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी दैट यू आल्सो हैव टू डू। नाउ दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एनसीईआरटीज आउट देयर फॉर द सिंपल रीजन कि भाई इस एनसीईआरटी में आप अगर ये देखोगे, मतलब this is a image of a statue of Buddha from the Mathura School of Art। अब इसमें क्या है, बुद्धा के सर के पीछे जो हेलो बना हुआ है, it is lightly ornamented, you also look at the clothing over here, right। अब मैं कितनी भी डिस्क्रिप्शन इस चीज की पढ़ लूं, एक बार मैंने इमेज देख ली एंड नाउ आई कंपेयर दिस विद इसी चैप्टर में पहले देयर इज गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट की कुछ यहाँ पे इन्होंने इमेजेस दे रखी हैं कि भाई वहां पे जो बुद्धा की स्टैचूज थी, नाउ लुक एट द डिफरेंस। हेलो completely blank, clothing much heavier, body much more well defined, right। यहाँ पे मतलब the bodhisattva is looking like a bodybuilder and यहाँ पे मतलब he is looking like a general आम आदमी। so that's the idea कि भाई जैसे ही अब ये इमेज मेरे दिमाग में है, my life has become sorted in the sense that I know exactly what the difference is। and अब कभी मुझे क्वेश्चन आता है कि भाई मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट वर्सेस गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट में क्या डिफरेंस था, मेरे को वो इमेज से मेरा काम हो जाएगा। आई कैन जस्ट डिस्क्राइब दीज टू इमेजेस एंड आई एम गुड टू गो। So therefore NCERTs में because of these images, because of all of these things, it is highly recommended that you just go all out with them। don't worry कि भैया अच्छा न्यू ओल्ड क्या तो ओल्ड एनसीईआरटीज अपनी एंशिएंट मेडिवल इंडिया सिर्फ ये वाली करनी है, इनका नया रीप्रिंट देखना है तो देख सकते हो। एंड दैट्स अबाउट इट फॉर दिस डिस्कशन। नाउ एक बेसिक चीज यहाँ पे है, देर आर अ लॉट ऑफ दीज पब्लिशर्स व्हिच ब्रिंग आउट एनसीईआरटी कंपाइलेशंस। कुछ आपको मतलब यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे कि भाई ये एनसीईआरटी का सारी एनसीईआरटी हमने एक साथ करके दे दी है, ऐसे कर दिया, मत करो ये सब। मतलब आई वुड हाईली रेकमेंड जो ओरिजिनल सोर्स है, यू गो विद द ओरिजिनल सोर्स। क्योंकि अब हो क्या रहा है कि भाई कोई बंदा अपना दिमाग लगा के इस ओरिजिनल को कंडेंस करके आपको कुछ चीज दे रहा है।
अब वो कंडेंस उसने अपना फिल्टर लगा के करी है, आपका फिल्टर शायद कुछ और होता, आपको कुछ और चीज समझ आती, तो देयरफॉर डूइंग इट फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स गिव्स यू अ लॉट मोर अंडरस्टैंडिंग, इट गिव्स यू अ लॉट मोर कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि अब जैसे ये इमेजेस हैं, अब वो कंडेंस करते हुए उन्होंने वो इमेज डाली कि नहीं डाली, तुमको नहीं पता, तुमको ये भी नहीं पता कि भाई कट क्या हुआ है। सो देयरफॉर लाइक ये जो एनसीईआरटी कंपाइलेशन वाली टाइप चीजें होती है ना, these are things that I would highly recommend that you avoid. Go for the original NCERTs, and ये original NCERTs को भी अगर आपको चाहिए कि भाई एक जगह पे मिल जाए सब कुछ, तो then what we have done is यही this sheet will be available in the description for this video, and यहाँ पे क्या है कि भाई we have created this beginner's guide to UPSC prep. ये beginner's guide, this is a free course from upscprep.com, एंड यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, सारी पीडीएफ्स, ओल्ड न्यू वट एवर एनसीईआरटीज दैट यू रिक्वायर, यू विल गेट ऑल ऑफ देम। उसके साथ साथ अ बेसिक स्ट्रैटेजी फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट कि भाई पॉलिटी कैसे करना है, आर्ट एंड कल्चर कैसे करना है, एनवायरमेंट, हिस्ट्री, इकोनॉमी, तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड सम राइटिंग एक्टिविटीज एक्स्ट्रा, और सारी काफी सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। दैट इफ यू वांट टू गेट स्टार्टेड विद आंसर राइटिंग, तो हाउ डू यू डू दैट, ऑल ऑफ इट इज ओवर हियर, राइट। तो मूविंग ऑन, एनसीईआरटी कंपाइलेशंस के बाद अब आते हैं, बात करते हैं कि भाई हाउ डू यू रीड दीज एनसीईआरटी। तो इसके लिए व्हाट आई विल डू इज, दिस इज अ चैप्टर फ्रॉम दैट बुक दैट वी टॉक्ड अबाउट इन द बिगिनिंग, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट। दिस इज क्लास 11th की एनसीईआरटी फॉर जियोग्राफी। एंड हम अब क्या करेंगे, वी विल जस्ट गो अराउंड एंड वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि भाई हाउ वुड somebody who's preparing for civil services read this chapter start to end। ये कुछ 10 एक पेज का चैप्टर है, बट इसमें पीछे वाली जो चीजें हैं वो मतलब काफी सारी, उसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे। नाउ करना क्या है, पढ़ते हुए चलो। अब यहाँ पे जो भी ये बॉक्सेस हैं, दीज बॉक्सेस आई वांट यू टू पे स्पेशल अटेंशन टू, क्योंकि ये बॉक्सेस में ना जनरली अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स यू आर गिवन कि भाई ड्रेनेज पैटर्न किस किस टाइप के होते हैं, राइट। देर आर डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न, देर आर रेडियल ड्रेनेज पैटर्न्स, देर आर सेंट्रीपिटल, एंड ये जो ड्रेनेज पैटर्न्स हैं, देन व्हाट हैपेंस इज कि भाई ओके नाउ आई कैन कैटेगराइज रिवर्स इन सर्टेन वेज। जो नॉर्दर्न रिवर्स हैं, हिमालयन रिवर्स हैं, दे आर जनरली डेंड्रिटिक। जो सदर्न रिवर्स हैं, दे आर मोर ट्रेलिस। देर आर अ कपल ऑफ रिवर्स इन इंडिया विच आर रेडियल। रेडियल का क्या मतलब होता है, एक पहाड़ है ऐसा, एक साइड से एक रिवर जा रही है, एक साइड से दूसरी रिवर जा रही है, देन these rivers will be radial drainage pattern। तो that's the concept। तो concepts जब भी डब्बे ऐसे दिए होते हैं, इन पे हमें जरूर ध्यान देना है। नाउ ये इंट्रो चीज है, इंट्रो के आगे आते हैं। व्हाट वी वांट टू फोकस ऑन आर द मैप्स, ऑलवेज फोकस ऑन द मैप्स। कि अब जैसे गंगा रिवर, यहाँ पे आपको दो पार्ट्स दिए हैं, यहाँ पे ये दो पार्ट्स का नाम मेंशन नहीं है, बट व्हेन आई गो इनटू द चैप्टर इट विल बी मेंशन्ड, राइट। तो दिस इज भागीरथी एंड अलकनंदा, दे जॉइन टू फॉर्म द गंगा रिवर। अब गंगा रिवर की लेफ्ट बैंक पे ट्रिब्यूटरीज कुछ यहाँ पे दी हुई हैं, इस डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रही है, दिस इज लेफ्ट, दिस इज राइट। तो लेफ्ट एंड राइट बैंक पे जो ट्रिब्यूटरीज दी हुई हैं, इनके नाम मुझे याद करने हैं, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। एज सिंपल एज दैट, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। मैप में मेरे को यहाँ पे जो भी अब इंफॉर्मेशन रिवर्स की दी हुई है, ये मैं रट के जाऊंगा, क्योंकि ये चीजों पे ना डायरेक्ट सवाल आए हुए हैं कि भाई ऑफ द 5 रिवर्स, कि भाई पंजनाड इनको बोलते हैं, ये 5 रिवर्स हैं, तो इनमें से कौन सी रिवर है जो एक्चुअली जाके इंडस को ज्वाइन करती है, मीनिंग विच इज ऑफ दीज 5 विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर। जनरली दैट्स द आंसर। गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, इसके ऑर्डर पे क्वेश्चन आ गया है। ब्रह्मपुत्र की क्या ट्रिब्यूटरीज हैं, क्या हो रहा है, इन पे क्वेश्चन आता रहता है। तो देयरफॉर मेजर रिवर्स का ये मैप जो है, आई विल लुक एट वेरी वेरी केयरफुली। नाउ बियॉन्ड दिस, अब मुझे क्या करना है, ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है कि भाई मेजर रिवर किसको बोलते हैं, माइनर, मीडियम रिवर किसको बोलते हैं, माइनर किसको बोलते हैं, इतना मतलब कोई जरूरी नहीं है, बट यहां से जो पार्ट है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर अस, कि हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम वर्सेस पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम, मेजर डिफरेंस, उसके बारे में बात कर लेंगे। नाउ नाउ ईच ऑफ दीज रिवर सिस्टम्स पे जब हम आ जाते हैं, तो मुझे क्या कुछ कुछ चीजें यहाँ पे नोट डाउन करनी है कि भाई Indus, also known as Sindhu, westernmost of the Himalayan rivers, it originates from a glacier near Bokharchu। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं सबसे पहले अपना यहीं की यहीं कहीं लिख लूंगा, इंडस के साइड में बोखारचू ग्लेशियर।
कि भाई अब जब भी मैं इस किताब को रिवाइज करने आऊंगा ना, तो इंडस सिस्टम का मुझे पता है दैट दिस बोखारचू ग्लेशियर इज वेयर इट इज राइजिंग फ्रॉम। अब उसके बाद यहाँ पे क्या है, it forms a gorge near Gilgit in Ladakh, enters Pakistan. Indus receives a number of Himalayan tributaries such as Shyok, Gilgit, Zaskar, Hunza, Nubra, Shilgar, Gasting and Dras। राइट, तो अब ये मुझे एक बार देखना है कि ये लेफ्ट बैंक हैं या राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। आई विल गो बैक एंड आई विल सी इन द मैप। मैप में अब मैं देखूंगा तो यहाँ पे कुछ बना हुआ नहीं है, तो एक बार, क्योंकि ज्योग्राफी में दिस इज समथिंग दैट यू शुड डू, आई विल गो एंड ओपन द एटलस। एटलस को मैं साथ में यहाँ पे रखूंगा ताकि भाई इन रिवर्स को मैं देख लूं। मुझे बस इतना सा करना है कि भाई आर दीज राइट बैंक और आर दीज लेफ्ट बैंक। मैं बस यही की हैं लिख के छोड़ दूंगा कि भाई दीज आर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ द इंडस, जो कि ये मोस्टली सारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ही हैं आपकी। कुछ अगर नहीं है तो वो एटलस से मुझे पता चल जाएगा। राइट, देन द रिवर फ्लोज साउथ वेस्ट, रिसीव्स पंजनाड अ लिटिल अबव मिठानकोट। तो पंजनाड क्या है, हमारी जो 5 रिवर्स हैं, सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब एंड झेलम। नाउ दीज आर 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिवर्स एंड दीज आर लाइक मेजर इनका ड्रेनेज है इंडिया में। तो अब इन रिवर्स को इंडिविजुअली यहाँ पे ट्रीट किया जाएगा। तो झेलम के साइड में अब मैं यहाँ क्या कर दूंगा कि भाई वेरीनाग, इसको मैंने हाईलाइट कर लिया, फुट ऑफ द पीर पंजाल। चेनाब का कि भाई इट इज तंडी नियर केलोंग, 2 streams Chandra and Bhaga, and which join Tandi near Kelong in Himachal Pradesh। तो चेनाब समवेयर इस तरीके से, रावी इट राइजेस वेस्ट ऑफ द रोहतांग पास। मैं हर जगह क्या करता हुआ चल रहा हूँ कि भाई रिवर का जो भी ब्यास कुंड नियर रोहतांग पास, सतलुज ओरिजिनेट्स इन राक्षसताल नियर मानसरोवर एंड इट इज इन तिब्बत। हर रिवर का मैं ये चीज करता हुआ चलूंगा कि भाई गंगा वेयर इज इट राइजिंग, विच आर द ट्रिब्यूटरीज, एंड ये जो सारी रिवर्स का करते 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 आई यू विल नोटिस कि राइट ऑन द पेज ऑफ दिस बुक आई विल हैव हाईलाइटेड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन जो बार बार कहीं ना कहीं मुझे क्वेश्चंस में दिखाई देते हैं। क्वेश्चंस में ना आपको ये टाइप चीज नहीं करेंगे कि भाई इट फ्लोज फॉर अबाउट 400 किलोमीटर्स बिफोर एंटरिंग इंडिया, नहीं, ये सब आपसे नहीं पूछेंगे कि भाई रोहतांग पास इतने एलिवेशन पे है। यूपीएससी के पेपर्स में आपसे इतना डिटेल डेप्थ नहीं पूछते हैं, फ्लोज फॉर इतना किलोमीटर नहीं। जनरल आपसे पूछा जाएगा कि भाई राइज कहाँ करती है, कि भाई कौन सी रिवर बड़ी है इनमें से, एंड उसके हिसाब से फिर बाकी सारी चीजें हमारी हो जाती हैं। राइट, तो ये एक और डब्बा अपना आ गया, नमामि गंगे प्रोजेक्ट। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंस। मेंस में कई बार नमामि गंगे पे क्वेश्चन आपके आ चुके हैं, या रिवर रिजुवनेशन, इन सब चीजों पे आते हैं। तो बेसिक हमेशा मुझे करके चलना है यहाँ पे। तो सिमिलरली व्हाट आई आल्सो डू इज कि भाई अब ये इंडस सिस्टम था, अब गंगा सिस्टम के लिए यही हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र के लिए यही हो जाएगा, सारी चीजें हो गई। पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम, दिस इज द कंपैरिजन ऑफ यहाँ पे जो हमारा था हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम। तो ये अगर मैं चाहूं तो यहाँ पे थोड़ा सा एक कंपेरेटिव पॉइंट्स मैं अपने बना सकता हूं कि भाई मोस्ट ऑफ द मेजर पेनिनसुलर रिवर्स एक्सेप्ट फॉर नर्मदा एंड तापी फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। राइट, अब चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुला, बिलोंग टू द गंगा रिवर सिस्टम। तो ये कुछ रिवर्स हैं जो पेनिनसुला से राइज करती हैं बट गो टू द नॉर्थ। तो अब मुझे क्या देखना है कि भाई ये किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। अभी तक अगर आप चैप्टर में ध्यान दे रहे हो और यहाँ तक आ गए थे तो यू विल नो कि भाई हाँ, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, these are right bank tributaries of Yamuna. Yamuna itself is right bank tributary of Ganga, and then Son is a right bank tributary of Ganga. ये सारी चीजें हम अगर मैप में ध्यान दें तो हमको मिल जाएंगी। राइट, you have the Chambal, Sindh, Betwa, Ken. These are all right bank tributaries of the Yamuna, and then Son is joining the Ganga itself. ये इंफॉर्मेशन मैं रट के जाऊंगा क्योंकि ये चीज पेपर में पूछी जाती है और कई बार पूछी जा चुकी है। तो कंपैरिजन हम करेंगे बिटवीन पेनिनसुलर ड्रेनेज वर्सेस हिमालयन ड्रेनेज, और ये कंपैरिजन अगर मेरे एक बार दिमाग में छप गया ना तो इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं एंड यू शुड बी एबल टू सॉल्व दीज सॉर्ट्स ऑफ क्वेश्चंस। नाउ सो यहाँ पे आके नाउ दिस इज वेयर यू यूज एनसीईआरटीज टू द बेस्ट इफेक्ट कि अगर मैंने चैप्टर ढंग से पढ़ा है मुझे यहीं की यहीं पता चल जाएगा बाय डूइंग दीज 4-5 क्वेश्चंस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स नोन एज द सॉरो ऑफ बंगाल, दामोदर ऊपर आया था, आपने अभी नहीं पढ़ा हमने बट लाइक यू नो दैट इज। Which of the following rivers has the largest river basin in India?
right? Ganga, which of the following rivers is not included in the Panjnad? The Panjnad joins the Indus, right? So therefore Indus is not part of the Panjnad. Which of the following flows in Rift Valley? तो अब रिफ्ट वैली का कॉन्सेप्ट है, अगर हमने क्लास 11th की दूसरी एनसीईआरटी करी है वो हमें पता है, तो वी नो इट इज नर्मदा। तो इस तरीके से मुझे एक बेसिक आइडिया लग जाएगा यहीं पे आते ही कि भाई मैं चैप्टर में ध्यान दे रहा था कि नहीं दे रहा था। तो डेफिनेटली ऑलवेज डू दीज एक्सरसाइजेस, आपकी एनसीईआरटी में होनी चाहिए। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट आई वांट यू टू डू आर ट्राई टू आंसर दीज टू क्वेश्चंस। For the simple reason, this is asking you to do it in 125 words. Mains में आपको 150 word answer लिखने होते हैं for 10 marks. And this is great practice. क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि भाई हाउ डू आई स्टार्ट आंसर राइटिंग। एनसीईआरटी जब आप पढ़ रहे हो ना, तो हर चैप्टर के पीछे 2 क्वेश्चन दिए होंगे, कर लो। क्योंकि अब यहां पे देखोगे, दीज आर मेंस क्वालिटी क्वेश्चंस। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ नॉर्थ इंडियन रिवर्स, हाउ आर दीज डिफरेंट फ्रॉम पेनिनसुलर रिवर्स। ज्योग्राफी में ऐसे ही सवाल आते हैं बेसिक, बट यू शुड बी एबल टू गिव मी अ वेरी क्लियर आइडिया कि भाई किस टाइप का ड्रेनेज पैटर्न हो रहा है वहां पे, पेरिनियल है या सीजनल है, लाइक ज्यादा बड़ी रिवर्स कौन सी हैं, डिस्चार्ज किसका ज्यादा होता है, तो दीज सोर्ट्स ऑफ थिंग्स। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, दिस इज फाइन, ये वो रट्टा करने में आपको हेल्प करेगा, बट इसमें अब मेरे को क्या करना है, इफ आई कैन ट्राई एंड ड्रॉ अ मैप ऑफ इंडिया, राइट, रफ बनाना है मुझे, मतलब आर्टिस्ट नहीं बनना है। तो इफ आई कैन ड्रॉ अ मैप ऑफ इंडिया एंड उसमें कि भाई हरिद्वार यहाँ कहीं है, सिलीगुड़ी यहाँ कहीं है, यहाँ से यहाँ अगर मैं जा रहा हूँ, तो विच आर द रिवर्स दैट आई कम अक्रॉस, तो फिर ये वही हो गया ना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, वही बात हो रही थी, वो रट्टा करवा रहे हैं ये भी। सो दिस इज द कोर आइडिया कि भाई एनसीईआरटी अगर आप ढंग से करते हुए चलते हो, द एनसीईआरटी इटसेल्फ विल मेक श्योर दैट यू हैव रिवाइज्ड ऑल्सो। व्हाट वी did just at the end of this chapter is something called active recall. एंड एक्टिव रिकॉल अगर आप हर चैप्टर के एंड पे कर लेते हो, एंड एनसीईआरटीज विल मेक श्योर दैट यू आर डूइंग दिस, सो देन दिस इंफॉर्मेशन विल स्टे स्टक विद यू। ये इंफॉर्मेशन दिमाग में चिपक जाएगी और इससे बढ़िया चीज आपके लिए कोई नहीं हो सकती है, राइट। सो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस डिस्कशन। लेट्स मूव बैक टू द प्रीवियस डिस्कशन विच इज कि भाई हाउ डू यू रीड, हमने बात कर ली। अब बात करते हैं कि भाई हाउ मच टाइम डू यू रिक्वायर, क्योंकि कर करने को ठीक है मैंने पढ़ ली एनसीईआरटीज, रफली मुझे एक जनरल आइडिया भी होना चाहिए कि भाई मुझे कितना टाइम लगेगा इन ऑर्डर टू कवर ऑल ऑफ दीज एनसीईआरटीज। तो 1 से 2 महीने में, वेरी इजी, 1 to 2 months में क्लास 11th एंड 12th की सारी एनसीईआरटीज आप कवर कर सकते हो। एंड दिस इज बीइंग वेरी वेरी जेनरस एंड इजी। 1 से 2 महीने में क्लास 11th एंड 12th की सारी एनसीईआरटीज करी जा सकती हैं। अगर आपसे ये नहीं हो रहा है, सो दैट इज अ वेरी गुड इंडिकेशन ऑफ कि भाई अगर दिस इज टू हार्ड, टू टफ, यू शुड डेफिनेटली स्टार्ट विद क्लास 6th की एनसीईआरटीज। क्योंकि यहां से फिर क्या होगा कि भाई धीरे धीरे मेरा कॉम्प्रिहेंशन का बेस भी बनेगा, मेरे को चीजें थोड़ी अप्रोचेबल भी लगेंगी, and when I'm familiar with the concept, when I'm familiar with the subject, things naturally tend to grow faster. So therefore, if I am not able to finish 11th and 12th की एनसीईआरटीज, मैंने सारी मंगवा ली हैं, देख ली हैं, और अब मेरे को लग रहा है कि 2 महीने में तो हो ही नहीं सकता ये, जो कि मैं बोल रहा हूं कि इज वेरी वेरी पॉसिबल इन 2 months। 2 months इज टू मच। 40 दिन में, 45 दिन में यू शुड बी एबल टू कवर 11th एंड 12th की सारी एनसीईआरटी जो उधर लिस्ट में दी हुई हैं। क्योंकि एनसीईआरटीज कोई आपकी, मतलब वेरी रेयर एनसीईआरटीज विल बी 200+ पेजेस, एंड एनसीईआरटीज में अभी भी जैसे हमने देखा तो हाफ द पेज इज फुल ऑफ इमेजेस। अब 200 पेज की ये एनसीईआरटी जिसमें मतलब भर भर के इमेजेस हैं, अब इसको पढ़ने के लिए आपको 8 दिन लग रहे हैं, तो वो भी सही बात नहीं है ना। इतना तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है यहाँ पे कि भाई इतना हल्का आप ले रहे हो, तो फिर देन प्रॉब्ली इट इज गोइंग टू टेक यू अ लॉट मोर टाइम देन यू थिंक, राइट। सो हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड, 1 to 2 months। आप क्लास 11th एंड 12th की एनसीईआरटी सारी खत्म कर सकते हो। इस टाइम से ज्यादा अगर आपको लग रहा है, तो दैट मीन्स यू नीड टू गो बैक टू मोर बेसिक एनसीईआरटीज एंड स्टार्ट फ्रॉम देयर। उससे क्या होगा, थिंग्स विल स्पीड अप। Which brings us to the final point of discussion is कि भाई एनसीईआरटी के नोट्स अब हमें कैसे बनाने हैं। नाउ एनसीईआरटी के नोट्स आई वुड रेकमेंड अगेंस्ट, क्योंकि अब जैसे हमने ये एनसीईआरटी देखी, अब ये एक चैप्टर देख लिया ना मैंने, अगर मैंने इस चैप्टर में इस तरीके से अपने नोट्स बना लिए हैं कि भाई ठीक है, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ट्रिपल जी के एंड सी एस बी के एंड
कुछ-कुछ मैंने अपने एक्रोनिम बना लिए, जैसा भी बनाना है मैंने कर लिया, तो यहीं पे मैंने कुछ-कुछ अपने नोट्स कर लिए हैं। अब व्हेन आई कम टू द ड्रेनेज सिस्टम्स तो मैंने देख लिया कि भई इंडस इज़ राइजिंग हियर, इंडस की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ यहाँ हैं, एटलस से देख के मैंने कुछ और इन्फॉर्मेशन थी तो मैंने यहीं पे लिख दी है, राइट? झेलम यहाँ राइज़ कर रही है, चेनाब यहाँ राइज़ कर रही है, सारी चीज़ें मैंने मार्क कर ली हैं। आई कैन जस्ट फ्लिप थ्रू दिस चैप्टर एंड इन 2 मिनट्स, 3 मिनट्स एट मोस्ट आई विल बी डन विद दैट चैप्टर का रिविजन। तो इस एनसीईआरटी की अगर मैं बात करूं, विच इज क्लास 11th की इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, आईपीई क्लास 11th, हैज आई थिंक 6 चैप्टर्स। अब अगर मैं पूरी एनसीईआरटी के 6 चैप्टर्स, चैप्टर रिविजन मेरा 2 से 3 मिनट में, चलो 5 मिनट ले लेते हैं, मतलब ठीक है, थोड़ा लेट्स मेक इट इजी, 5 मिनट्स per chapter. In 6 chapters, 30 minutes, I have revised the entire book. तो देन फिर लाइक व्हाट इज द पॉइंट ऑफ मेकिंग नोट्स? क्योंकि नोट्स मैं तब बनाता हूं जब मेरी किताब 800 पन्ने की हो और मेरे को 2 दिन लग जाएंगे सिर्फ वो किताब को पलटने में। बट हियर इट इज अ वेरी स्मॉल बुक एंड इट इज मच मोर यूजफुल कि भाई मेरे को मैं इमेजेस वो दिखती रहे, मैं वो मैप्स बार बार देखता रहूं। एंड जनरली क्या होगा कि भाई जब भी आप नोट्स बनाओगे ना तो ऑल ऑफ द मैप्स विल नॉट बी देयर अनलेस आप पेज फाड़ फाड़ के अपने नोट्स में लगा रहे हो, बट देन योर नोट्स विल बिकम बल्की। सो देयरफॉर फॉर दिस सिंपल रीजन आई जनरली एडवाइज अगेंस्ट मेकिंग नोट्स ऑफ एनसीईआरटीज, विच इज वेयर ऑल्सो कि भाई बहुत सारे आपको टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल एंड लाइक यू नो व्हाट्सएप चैनल्स मिल जाएंगे जहां पे वो 100 रुपए के 50 रुपए के एनसीईआरटी नोट बेच रहे होंगे। ये काम चोरी वाला काम मत करना, मतलब दिस इज अ जेन्युइन रिक्वेस्ट, क्योंकि इतनी काम चोरी पे अगर आप आ गए हो कि भाई मतलब एनसीईआरटी नहीं पढ़नी, एनसीईआरटी के नोट ले लेंगे 150 रुपए में, तो फिर मैं अभी बता रहा हूँ वो 150 रुपए के नोट ले भी लोगे और वो पढ़े भी रहेंगे और उनको कभी नहीं पढ़ोगे। Read these NCRTs. These will make you enjoy learning about the subject. And if you start enjoying the subject, there is nothing that will stop you from clearing this exam. It's as simple as that. क्योंकि बहुत बार लोगों को ये लगता है कि भाई मेरे को रगड़ा मारना है। ठीक है, रगड़ा मारना है, ऐसा नहीं है नहीं मारना है, बट हर चीज में रगड़ा मारने की जरूरत नहीं है। अगर हर चीज आपको लग रही है कि भाई घिसना पड़ रहा है, दिक्कत हो रही है, तो देन यू रियली नीड टू रिफ्लेक्ट ऑन कि भाई व्हाई आर यू डूइंग दिस? बिकॉज if studies are not enjoyable for you, this is going to be the most horrible experience of your life. So you have to figure out how to make studies enjoyable, and reading NCRTs without the stress and pressure of कि भाई नहीं मुझे करनी है, मुझे खत्म करनी है, अभी करनी है, इतने टाइम में होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, that is creating unnecessary stress. Particularly अगर आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हो, आप 28 29 कभी का अटेम्प्ट देख रहे हो, so then reading NCRTs should be the most enjoyable part of your journey. Just enjoy these books. फोटोज देखो, इमेजेस देखो, कुछ क्यूरियोसिटी अगर आपकी जागती है तो उसको जाके गूगल करके देखो, बिकॉज इफ यू डू दैट learning will be fun. And that is the entire purpose of reading NCRTs to begin with. कि भाई हम foundation build करें, we start enjoying the subject, and then we get some of the benefit of कि भाई direct question भी कभी कभार आ जाते हैं. Right, so that's all for this discussion. Thank you all for watching. For those of you that are interested, जो 2027 का plan था, that will be in the video description, and जो free beginners guide to UPSC का course है, that is available on courses.upscprep.com. That will also be in the video का description. So thank you all and all the best on your UPSC journey.